بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ابراہیم کے پاس جائیں اور اس کو لشکر سمیت میری طرف بلائیں اور اس کے سامنے کلمہ توحید پڑھیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کہو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، دیکھ مملکت اسماء کی تیرے خدا سے چھین لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو اسماء پر کس طرح جائے گا؟ اس نے کہا، میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے حکم کیا، 4 گدھوں کو پالیں جبکہ چاروں اونٹوں کے برابر ہوں۔ ایک تابوت بنا کر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں شیطان مردود اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھا اور اس سے کہا، تابوت کے چاروں کونوں میں 4 گدھوں کو باندھو اور ایک رات تک ان کو بھوکھا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب گوشت کھانے کا ارادہ کریں گے تب تجھ کو اسماء کی طرف لے اڑیں گے، تب تھوڑے عرصے میں تابوت سمیت تجھے اسماء پر پہنچا دیں گے۔ تب اس وقت ملک اسماء تیرے دخل میں آ جائے گا اور اپنے ساتھ ایک مصاحب کو لے جائیو۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مان نظر آئے گا، اس وقت سمجھیو کہ میں اسمان پر پہنچا۔ ابلیس نے جو کہا سو نمرود مردود نے سنا اور ویسا ہی کیا اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر اسماء کی طرف چلا۔ جب بلند ہوا، تیر کو کما سے لگا کر چاہا اسماء کی طرف لگاوے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا، اے مردود، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس مردود نے کہا، اسماء کے خدا کو تیر لگا کر ملک اسماء اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے، وہ خدا ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ پوچھتا ہے، نام اس کا قہار و جبار ہے اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بحشت میں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ پس نمرود نے اسماء کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دے تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبریل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبریل علیہ السلام، اس کو کیا کرو گے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی میں عرض کی، الہی، اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی، اے مچھلی، جو رنج کی اب تو کھینچتی ہے تجھ کو تکلیف نہ ہوگی۔ بس جبریل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا لہو لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تب خوش ہوا، مقصد میرا حاصل ہوا، اب اسماء کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ بس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا پھر تابوت کی نیچے کی طرف باندھ دیا۔ پھر جب گدھوں نے گوشت دیکھا نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا اور تمام لوگوں پر خوف و نزاع آ گیا اور سب بے ہوش ہو گئے۔ بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے اور سب کے سب جدی جدی زبانیں کرنے لگے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھتا تھا، خدا تعالیٰ کی بات کو کسی سے معلوم نہ کر سکے۔ اور قصہ، جب نمرود نے ان اسماء پر سے زمین پر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک اسماء چھین لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، نہ وہ مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ رزاق ہے سب کا، وہ خالق ہے سب مخلوق کا۔ پھر اس لعین نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ تیرے خدا کو اسماء پر مار چکا ہوں، اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں گا۔
इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे खुदा के लश्कर की खबर नहीं जानता है सिवाय इसके जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और कोई नहीं जानता तेरे रब का लश्कर मगर वही। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ, तू भी अपने खुदा का लश्कर जमा कर ताकि मेरे साथ मुकाबला हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकून में जमा करेगा। तब इस मरदूद ने मशरिक और मगरिब और रोम और तजिकिस्तान और हिंद से तमाम लश्करों फौज बुलाकर जमा किया। 300 फरलांग यानी 900 कोस तक अपने लश्कर की छावनी पड़ी थी। 60 बरस तक इसी ख्याल बातिल और फिक्र बेहुदा में पड़ा रहा। तमाम लश्करों फौज जमीन बाबिल में लाकर जमा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए पलीद, खुदा से शर्म कर, वो तमाम मखलूकात का रब है, इससे जरा डर और अपना खालिक जानकर इसने तुझे दुनिया में सल्तनत दी और आखिरत में भी देने वाला है। इस पलीद ने कहा, मुझे तेरे खुदा से कुछ हाजत नहीं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ मांगी, या अल्लाह, ये मरदूद ना फरमा तेरे साथ मुकाबला किया चाहता है तो इसको हलाक कर। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत को कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। तब पस नमरूद ने 60 लाख सवार जर्रा पोश तैयार करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तेरे खुदा को अगर ताकत है तो कह दे कि दुनिया की बादशाही हमसे छीन ले, मगर पहले मेरी फौज से आकर लड़े। तब हजरत ने जनाब बारी में अर्ज की, हुक्म हुआ, तू क्या मांगता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदाया, तेरी मखलूकात में से मच्छर ने ज़ईफ और हर जानवर की खुराक है, मैं इसे मांगता हूँ। फरिश्तों को हुक्म हुआ मच्छरों को छोड़ दें, और इसी वक्त फरिश्तों पर फरमा हुआ कि तुम कहकाफ में जाकर मच्छरों के सुराखों में से एक सुराख खोल दो। फरिश्तों ने अर्ज की, इलाही, कितने मच्छर छोड़ें? हुक्म हुआ 60 लाख, ताकि हर एक सवार के मुकाबले में एक लश्कर नमरूद के एक एक हो जाए। तो नमरूद अपनी कुव्वत और शुजाअत को देखे और मालूम करे। फरिश्तों ने हुक्म इलाही से जाकर एक सुराख में इसमें से खोल दिया। तब मच्छर अबर की मानंद जमीन बाबिल में जहां इनकी लश्कर गाह थी जा पहुंचे। जनाब बारी का हुक्म हुआ, ए मच्छरों, तुम्हारी खुराक नमरूद के लश्करों को और उसको मैंने कर दिया, तुम जाके खाओ। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे जाकर कहा, ए नमरूद, देख मेरे खुदा की फौज आह पहुंची है। जब नमरूद ने देखा मानद अबर स्याह की हवा पर कुछ चला आता है, तब इस लाइन ने अपने सिपाहियों को कहा, होशियार हो, अलम खड़ा करो और नगाड़ा बजाओ। उन्होंने वैसा ही किया और कहते हैं शोर गलत से नमरूद के लश्करियों के जमीन पर जलजला पड़ गया था। तब फौज इलाही आह पहुंची। वो शोर गल आदमियों का मच्छरों की आवाजों से कम हो गया। जोशो खरूश इस मरदूद का जाता रहा और हर सवार के सर पर एक मच्छर बैठ गया और सूंड अपनी इनके सरों पर चुभा चुभा कर मगज और गोश्त और पोस्त और रग और आंख सवारी समेत सब का सब खा गए। और खुदा के फजलो करम से मच्छर जरा भी मांदे न हुए, और दूसरी बात है हड्डी तक इनकी खा गए। इस मलून की लश्कर गाह में एक आदमी बाकी न था। एक मच्छर काना, लूला, लंगड़ा, गर्ज, हर अफू इसके नुकसान था, वो सरदार मच्छरों का था। इसने खुदा की दरगाह में अर्ज की, इलाही, नमरूद मलून को मेरे हाथ से हलाक कर ताकि इसके बदले मुझे सवाब मिले। बस खुदा ताला ने कबूल किया। जब नमरूद मरदूद अकेला घर की तरफ भागा लश्करगाह से और बाला खाना में हरम बाबिल के बैठकर ये तशवीश कर रहा था कि हमारा लश्कर सब इस तरह से मारा गया और हम एक मच्छर भी ना मार सके। वो सरदार मच्छर जो लंगड़ा और एक आंख का काना था, इस मरदूद के जानों पर जा बैठा। इसे देखकर इसने अपनी जोड़ों से कहा, इसी तरह के जानवर आगे हमारे लश्करों को खा गए, अगरचे ज़ईफ थे फिर भी ना मार सके। ये कहकर चाहा इसको पकड़े, इतने में वो मच्छर इस पलीद की नाक में घुसा और दिमाग में जाकर मगज खाने लगा। वो मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ जिसका चारा कुछ न हो सका। 40 दिन रात तक इसी तरह गुजरे कि जब इसके दोस्त, आशना, नौकर चाकर में से कोई
कोई इसके सर पर लकड़ी या कश्फ मारा करता तो इसके सदमे से कुछ मच्छर मगज में जरा दम लेता, तब इस मरदूद को जरा सा चैन होता। बस 40 दिन रात की वही नाजिल हुई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप नमरूद के पास जाएं और मेरी तरफ से उसको बुलाएं और राह बताएं कि इसका भला हो। तब हजरत ने खुदा के हुक्म से नमरूद के पास जाकर कहा, ए नमरूद, तू कह ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम रसूलुल्लाह। नमरूद ने कहा, वो और तू कौन है कि मैं गवाही दूं इसकी वहदानियत और तेरी रिसालत पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे घर की सब चीजें गवाही दे खुदा एक है और मैं रसूल इसका, तब तू इसका ईमान लाएगा। बस इतने में तमाम फर्श फरूश और छत और अलात व असात अलबैत गैर सब शय ने बआवाज बुलंद जबान से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन व इब्राहीम रसूल रब्बिल आलमीन। नमरूद ने हुक्म किया, तमाम असबाब औलाद घर का जलाकर दरिया में डाल दो। वैसा ही किया। तब पलीद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, फिर कौन बोलेगा कि तेरा खुदा एक है और तेरा रसूल बड़हक है। हजरत ने फरमाया, तमाम दरो दीवार और सतून और मकानात और सब चीजें इसकी शहादत देंगी। इस वक्त सब ने बाआवाज बुलंद ज़बां फसीह से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन व इब्राहीम रसूल रब्बिल आलमीन। फिर नमरूद ने सब शय को यानी दरो दीवार मकान और सतून सब खुदवा कर जला दिया। फिर नमरूद ने हजरत से कहा, अब कौन बोलेगा। हजरत ने फरमाया, तेरे बदन की पोशाक गवाही देगी। फिर कपड़े ने गवाही दी, इसको भी इस नमरूद ने उतार कर जला दिया। फिर पलीत ने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कौन बोलेगा। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, खलीलुल्लाह से कहने लगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम काफिरों ने मौत के वक्त खुदा की वहदानियत में करार किया था, मगर ये मरदूद काफिर हरगिज़ ईमान न लाएगा, क़यामत तक इस पर अज़ाब शदीद होगा। और हदीस में आया है, जिस वक्त अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल का सर काटना चाहा, उस वक्त अबू जहल ने कहा, ए अब्दुल्लाह, तू अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह, जब से मैं इसको दुश्मन जानता हूँ तभी से यही बोलता हूँ, वो रसूल खुदा का नहीं। बस क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हजरत बिलाल हबशी नमाज के लिए अज़ान देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर अबू जहल वहां भी बोलने लगेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा का रसूल नहीं। बस ये दोनों मरदूद अबू जहल और नमरूद दुनिया में बड़े काफिर थे और आखिरत में भी हमेशा अजाब इन पर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इस मालून को अजल आ चुकी है, बाकी कुछ नहीं। जिस घड़ी वो मच्छर इसकी नाक से निकल कर चला गया, वो मरदूद वहीं मर गया और जहन्नुम वासिल हुआ, क़यामत तक अजाब में रहेगा। और एक रिवायत है कि नमरूद के सर पर सोटा मारने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। जब शब रोज इसको सोटा लगाया करता तब इसको कुछ करार आता। इसी तरह जब रात दिन लगाते लगाते 40 दिन गुजरे, तब नौकर इसका नाचार हुआ। आखिर गुस्सा होकर एक ही दफा जोर से एक सोटा ऐसा मारा कि सर उस मरदूद का 2 टुकड़े हो गया। भेजा निकल पड़ा और जान इसकी निकल गई। वो जहन्नुम में दाखिल हुआ और वो मच्छर मगज खाकर जो मानिंद मुर्गा के बड़ा हुआ था, सर से निकलकर चला गया। बेशक दोस्तों, जो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे होते हैं वो उससे हर हाल में डरते हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों की हर दुआ कबूल करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका खात्मा ईमान पर करे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।